پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم کا کل سے اسلام آباد میں آغاز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی خصوصی شرکت۔ اعلیٰ سطح امریکی وفد طارق ماہر کی سربراہی میں فورم میں شرکت کرے گا۔ سرمایہ کاری، سیکیورٹی اور حکومتی پالیسیوں پر سیشنز ہوں گے۔ معدنی شعبے کے لیے ترقیاتی منصوبے زیر غور، سرمایہ کاروں کے لیے پرکشش مواقع۔ پاکستان خطے میں معدنی وسائل میں سرمایہ کاری کے لیے نیا تجارتی اور معاشی مرکز قرار۔ پاکستان منرلز انویسٹمنٹ فورم 2025 غیر ملکی سرمایہ کاروں اور ماہرین کی آمد کا سلسلہ جاری۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کیتھرین مارش اور چین کے جیان جیولوجیکل سروے سینٹر کا وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ مہمانوں کا پاکستان آمد پر خوشی کا اظہار، اہم فورم کے ذریعے معدنی شعبے کی ترقی کے لیے پرامید۔ ایس آئی ایف سی کی سہولت کاری سے آئی ٹی کی خدمات کی برآمدات میں 6% اضافہ۔ 8 ماہ میں 5 ارب 40 کروڑ ڈالر کا زر مبادلہ حاصل۔ آئی ٹی، کمپیوٹر اور ٹیلی کام خدمات کی برآمدات 25% اضافے سے 2 ارب 40 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئیں۔ دیگر بزنس سروسز کی برآمدات 1.4% اضافے سے 1 ارب 7 کروڑ ڈالر ریکارڈ۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں کمی کا امکان۔ عالمی مارکیٹ میں فری لانسرز اور سٹارٹ اپس کے لیے نئے مواقع۔ ایس آئی ایف سی کے تعاون سے میٹالوجی کارپوریشن چائنا کی ریسورس ڈیولپمنٹ لمیٹڈ کمپنی کی سینڈک بلوچستان میں کانکری، ضلع چاغی کے علاقے سینڈک میں خام مواد کے اخراج سے 99.87% تانبے کے حصول تک کے انتظامات مکمل۔ سینڈک سے گزشتہ 23 برس میں 3,40,000 ٹن تانبا نکالا گیا۔ آئندہ 15 برس میں مزید 30 لاکھ ٹن ذخائر نکالے جائیں گے۔ سینڈک میں چینی کمپنی کی جانب سے صحت اور تعلیمی سہولیات کی بھی فراہمی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے نواحی علاقے ٹکوارہ میں خارج کی موجودگی کی خفیہ اطلاعات پر سیکیورٹی فورسز کا آپریشن۔ فائرنگ کے تبادلے میں 9 خارج جہنم واصل، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ خارج کا انتہائی اہم سرغنہ شیرین بھی مارا گیا۔ کئی معصوم شہریوں اور کیپٹن حسنین اختر شہید کے قتل میں ملوث خارجی شہرین قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں مطلوب تھا۔ علاقے میں مزید خارج کی موجودگی کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ مسلح افواج ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ ISPR۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی ٹکواڑہ میں فتنۃ الخارج کے دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی پر اطمینان کا اظہار۔ اہم سرغنہ سمیت 9 خارجی دہشت گردوں کی ہلاکت پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے وزیر اعظم۔ صدر آصف علی زرداری کا ٹکوارہ میں کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ فتنہ الخارج کے 9 دہشت گردوں کا کلا کما کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی بہادری کو سراہد۔ کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے سرغنہ کو ہلاک کرنا سیکیورٹی فورسز کی بڑی کامیابی ہے۔ صدر مملکت کا فتنہ الخارج کے مکمل خاتمے کے قومی عزم کا اظہار۔ پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا ہے، امن و امان کے قیام کے لیے دہشت گردی کا خاتمہ ضروری ہے۔ افغان سرحد سے پاکستان میں در اندازی کو روکنا ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں امن و امان کا قیام اور گڈ گورننس کو بہتر بنانا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا تقریب سے خطاب۔ عوام کو ریلیف کی فراہمی، مسلم لیگ نون کا ترہ امتیاز۔ بجلی کی قیمتوں میں نمایاں کمی کی گئی، یہ ابھی ابتدا ہے۔ ریلیف فراہمی کا سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ خیبر پختونخوا میں 13 سال سے ایک ہی جماعت کی حکومت ہے، وہاں کیا بدلا؟ مقابلہ کارکردگی کا ہونا چاہیے، گالم گلوچ کا نہیں۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا انجمن تاجران اور جڑامالہ پریس سے خطاب۔ حکومت صحت کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی بروئے کار لانے کے لیے پرعزم۔ ہر فرد کو صحت کی معیاری سہولیات کی فراہمی ہمارا ہدف۔ صحت مند خاندان پر امید قوم کی بنیاد اور روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ صحت کے عالمی دن پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پیغام۔
پاکستان میں 54% آبادی کو بنیادی صحت کی خدمات میسر، یونیورسل ہیلتھ کوریج کی جانب گامزن، ڈاکٹرز اور دوا عوام کے دہلیز تک پہنچائیں گے۔ علاج کی سہولیات یقینی بنانے کے لیے ٹیلی میڈیسن، ون پیشنٹ ون آئی ڈی کا نظام متعارف کرا رہے ہیں۔ عالمی یوم صحت کے موقع پر وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا پیغام۔ سانحہ گیاری سیکٹر کے شہداء کی 13ویں برسی، سیاچن کا محاذ دنیا کا بلند ترین میدان جنگ۔ 7 اپریل 2012 کو سیاچن کے محاذ پر انتہائی دردناک حادثہ پیش آیا۔ پاکستان آرمی کا بٹالین ہیڈ کوارٹرز مکمل طور پر برف میں دب گیا۔ پاک فوج کے 129 جوان برفانی تودے کی زد میں آ گئے۔ پوری قوم شہداء گیاری سیکٹر کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ شہداء گیاری کی عظیم قربانی پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ بھارت میں وقف ترمیمی بل 2025 کے خلاف احتجاج جاری، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا سخت موقف، قومی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ مہم کا آغاز دہلی کے ٹاکٹورا اسٹیڈیم میں عظیم عوامی اجتماع سے ہوگا۔ سپریم کورٹ میں ترامیم چیلنج، ہر ریاستی دارالحکومت میں رہنما علامتی گرفتاریاں دیں گے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری مولانا محمد فضل الرحمان مجددی۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ سے متعلق سوشل میڈیا پر شیئر ہونے والی پوسٹ فیک، سماجی رابطے کی ایپ پر آنے والا بیان سراسر جھوٹ کا پلندہ، نشانہ ایک بار پھر افواج پاکستان۔ غزہ میں قابض اسرائیلی فورسز کی بربریت جاری، صہیونی بمباری میں 50 سے زائد فلسطینی شہید۔ مغربی کنارے میں رات بھر چھاپہ مار کارروائیاں، گھر گھر تلاشی کے دوران متعدد فلسطینی گرفتار کیے گئے۔ یمن کے شہروں صنعا اور صعدہ پر بھی امریکی فورسز کی بمباری، 6 افراد جاں بحق۔ یورپی یونین کا امریکی درآمدات پر 28 ارب ڈالر ٹیرف لگانے کا فیصلہ، ٹیرف لگانے کی منظوری اتحادیوں سے مشاورت کے بعد دی جائے گی۔ ہم ٹیرف کے مسئلے پر اپنے دفاع کے لیے تیار ہیں۔ 24 اپریل کو لندن میں برطانوی وزیراعظم سے ملاقات ہوگی۔ ہم امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں، سربراہ یورپی کمیشن۔ امریکی ٹیرف کے بعد ایشیائی منڈیوں میں کاروبار کے آغاز پر بندی، ہانگ کانگ سٹاک مارکیٹ میں 9%، جاپانی مارکیٹ میں 6% سے زائد کمی۔ سعودی سٹاک مارکیٹ سمیت دیگر خلیجی منڈیاں بھی مندی کا شکار۔ سعودی سٹاک ایکسچینج میں 6.78% گراوٹ، گزشتہ 5 برسوں کے دوران ایک دن میں ریکارڈ کمی۔ کویت کے انڈیکس میں 5.7%، قطر کے سٹاک مارکیٹ میں 4.2% کمی۔ امریکی خام تیل کی قیمتیں $60 فی بیرل سے بھی نیچے گر گئیں۔ پاکستان میں کرکٹ کا بڑا میلہ سجنے کو تیار۔ پاکستان سپر لیگ کے 10ویں ایڈیشن کے آغاز میں 4 روز باقی۔ پی ایس ایل میں شامل غیر ملکی کھلاڑیوں کی آمد کا سلسلہ شروع۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے سٹار بلے باز جنوبی افریقہ کے رائلی روسو پاکستان پہنچ گئے۔ میگا ایونٹ کے افتتاحی میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز 11 اپریل کو پنڈی میں مد مقابل ہوں گے۔ آئی سی سی ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر، آج 2 وارم اپ میچز۔ پہلے میچ میں ویسٹ انڈیز کی پاکستان کے خلاف قذافی اسٹیڈیم میں بیٹنگ جاری۔ دوسرے وارم اپ میچ میں تھائی لینڈ اور آئرلینڈ کی ٹیم میں ایل سی سی اے گراؤنڈ میں مد مقابل۔ ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر کا آغاز 9 اپریل سے ہوگا۔ قذافی اسٹیڈیم میں شیڈول میچز کے لیے شائقین کا داخلہ فری۔ امریکہ کے جیسن بروکسبے کا پہلا اے ٹی پی ٹور اعزاز، مینز کلے کورٹ ہیوسٹن ٹینس چیمپئن شپ اپنے نام کر لی۔ فائنل میں بروکسبے نے ہم وطن فرانسس تیافو کو اسٹریٹ سیٹس میں شکست دے دی۔ بروکس اے ٹی پی کی 35 سالہ تاریخ میں کم ترین رینکنگ والے تیسرے چیمپئن ہیں۔ اس کامیابی کے بعد بروکس رینکنگ میں 335 سیڑھیاں چڑھ کر 172ویں نمبر پر آ جائیں گے۔ اور جنوبی کیرولینا میں WTA 500 اوپن ٹینس، امریکہ کی جیسیکا پیگولا نے پہلے کلے کورٹ ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ فائنل میں جیسیکا نے ہم وطن صوفیہ کینن کو شکست دی۔ ٹورنامنٹ کی تاریخ میں 1990 کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ فائنل میں دونوں امریکی کھلاڑی مد مقابل ہوئیں۔ اعزاز جیتنے کے بعد جیسیکا کا عالمی رینکنگ میں 30 نمبر پر آ جائیں گی۔
singles champion Jessica Pegula. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और दिन 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और मैं हूं अयाज असलम। नाज़रीन, खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का कल से इस्लामाबाद में आगाज हो रहा है। फोरम में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। फोरम में शिरकत के लिए गैर मुल्की सरमायाकारों और माहिरीन की आमद का सिलसिला जारी है। आला सतह अमरीकी वफ्द भी एरिक मायर की सरबराही में फोरम में शिरकत करेगा। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में रेक्रूटिंग समेत अहम माती मनसूबों में सरमायाकारी, सिक्योरिटी और हुकूमती पॉलिसीज पर अहम सेशंस, सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मौके मौजूद हैं। मादनी शोबे के लिए तरक्याती मनसूबे ज़ेर गौर आएंगे। मादनी ज़खायर को पायदार तरक्की के लिए बरूए कार लाने पर तवज्जो मरकूज होगी। पाकिस्तान को खित्ते में मादनी वसाइल में सरमायाकारी के लिए नया तजारती और माशी मरकज करार दिया जा रहा है। और पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत के लिए एशियाई तरक्याती बैंक की डिप्टी डायरेक्टर जनरल कैथरीन मार्श और चीन के यान जियोलॉजिकल सर्वे सेंटर का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया है। कैथरीन मार्श इस अहम फोरम के जरिए मादनी शोबे की तरक्की के लिए पुरुम्मीद हैं। उन्होंने मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत की दावत पर इजहार तशक्कुर किया है। फोरम में शिरकत के लिए चीन के यान जियोलॉजिकल सर्वे सेंटर के प्रोजेक्ट मैनेजर वांग जी हवा भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। 2011 से पाकिस्तान के साथ इश्तराक पर खुशी का इजहार करते हुए मुस्तकबिल में मजीद ताउन के फरोग की उम्मीद जाहिर की है। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में चीनी, अमरीकी, सऊदी और दीगर गैर मुल्की वफूद की शिरकत मादनी शोबे की तरक्की का नया बाब है। और पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इनेकाद 8 और 9 अप्रैल को इस्लामाबाद में किया जाएगा, जो मुल्क के मादनी शोबे के लिए एक तारीखी और इनकलाबी कदम साबित होगा। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं फाहद जावेद। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम मादनी इनकलाब का आगाज है। मादनियात और कानकुनी के शोबे की तरक्की पाकिस्तान के खुशहाल मुस्तकबिल की जामिन है। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 का इनेकाद 8 और 9 अप्रैल को इस्लामाबाद में होगा, जिसमें बैरून मुल्क से इस शोबे में ताल्लुक रखने वाले सरमायाकारों और माहिरीन की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। मुल्क के खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मादनियात और कानकुनी के शोबे को जदीद खतूत पर उस्तवार करने की जरूरत है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तक फैले हुए सोने, तांबे, लोहे, कीमती पत्थरों और दीगर मादनियात से मुल्क मालामाल है। इसके अलावा रेकोडिक भी इस हवाले से खास मकाम रखता है। रेकोडिक सिर्फ एक कान ही नहीं बल्कि ये पाकिस्तान के मादनी ख्वाब की ताबीर है। इस जानिब तवज्जो दिलाकर मुल्क को तरक्की के सफर पर डाला और कामयाब बनाया जा सकता है। नेशनल मिनरल्स फ्रेमवर्क के जरिए सरमायाकार दोस्त माहौल की बुनियाद रख दी गई है, जिसकी वजह से कानकुनी के शोबे में मकामी अफराद को तरबियत और रोजगार के सुनहरे मौके फराहम हो रहे हैं। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के जरिए वसाइल से मालामाल इलाकों में तरक्की और रोजगार की नई राहें खुली हैं। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ताउन से पाकिस्तान की खिदमात की बरामदात में 6% इजाफा हुआ और गुज़श्ता 8 माह में 5.4 अरब डॉलर्स का ज़र मुबादला हासिल किया गया। IT, कंप्यूटर और टेलीकॉम खदमात की बरामदात में 25% इजाफा हुआ और बरामदात 2.4 अरब डॉलर तक पहुँच गईं। IT खदमात की बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है और सिर्फ फरवरी में 709 मिलियन डॉलर्स की बरामदात रिकॉर्ड की गईं। दीगर तजारती खदमात की बरामदात में 1.4% इजाफे से 1.07 अरब डॉलर बढ़ गईं। खदमात की बरामदात में इजाफे से ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी और करंट अकाउंट खसारे में कमी का इम्कान है। IT खदमात की बरामदात में बेहतरी पाकिस्तान की मईशत के डिजिटल मुस्तकबिल की नवीद है। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा।
दोस्त, हर वक्त बर वक्त। बलूचिस्तान ज़ेर ज़मीन कुदरती ज़खायर के ख़जानों से मालामाल सूबा है, जहाँ चीन के इश्तराक से सैंडक के मकाम पर गुज़श्ता 23 बरस से तांबे की कानकनी जारी है। जिला चागी के इलाके सैंडक में चीनी कंपनी ने खाम मवाद के खराज से लेकर 99.87% तांबे के हुसूल तक के इंतजाम कर रखे हैं। चीनी माहिरीन के मुताबिक सैंडक से 23 बरस में 3,40,000 टन तांबा निकाला जा चुका है, जबकि मजीद 3 लाख टन के ज़खायर मौजूद हैं जो अगले 15 बरस में निकाले जाएंगे। कॉर्पोरेट समाजी जिम्मेदारियों में 25 बेड और जदीद आलात पर मबनी हस्पताल का क़याम शामिल है। सैंडक में कंपनी ने एक हाई स्कूल भी कायम किया है, जहां तलबा को मुफ्त मायारी तालीम फ्राहम की जा रही है। चीनी कंपनी ने 6 नवाही गाँव को मुफ्त बिजली और पानी फ्राहम कर रखा है। कॉर्पोरेट समाजी जिम्मेदारी के तहत कंपनी इलाके के मकीनों को घर के साथ साथ सालाना राशन भी मुफ्त फ्राहम कर रही है। SIFC की सहूलतकारी के बायस इस मनसूबे की कारकर्दगी मजीद बेहतर हुई है। इस कंपनी ने इलाके की खुशहाली की काविशें भी बढ़ा दी हैं। एक और अहम खबर यहां पर बुलेटिन में शामिल करते हुए आपको बताते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस की मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने गुज़श्ता रात डेरा इस्माइल खान के इलाके टकवारा में खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए 9 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। हलाक दहशतगर्दों में एक अहम दहशतगर्द सरगना शेरीन भी शामिल था, जो शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ 20 मार्च को कैप्टन हसनैन अख्तर की शहादत में भी मुलव्वस था। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद की भारी मिकदार बरामद हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेस के इलाके में मुमकिन तौर पर मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ज़िला डेरा इस्माइल खान के इलाके तकवाड़ा में फितन खारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई की सताइश की है। वज़ीर-ए-आज़म ने ऑपरेशन में दहशतगर्दों के मतलूब सरगना समेत 9 खारजी दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। और सदर आसिफ अली जरदारी ने डेरा इस्माइल खान में कामयाब ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से 9 खारिज को जहन्नुम वासिल करने पर फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। अपने एक बयान में सदर ममलकत ने इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाइयों के दौरान हाई वैल्यू टारगेट समेत फितन खारिज के 9 दहशतगर्दों का कला कमा करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। सदर ने कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के सरगना को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कार्रवाई के दौरान दहशतगर्दों के सरगना को हलाक करना सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी है। सदर ने कहा कि दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कामयाब कार्रवाइयाँ करना खुशाइंद है। सदर ममलकत ने फितन खारिज के मुकम्मल खात्मे के कौमी अज़्म का इजहार करते हुए कहा कि दहशतगर्द अनासर के खात्मे मुल्क के दफा के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल रहेगा। और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगान बॉर्डर से दहशतगर्दी की पाकिस्तान में दरअंदाजी को नाकाम बनाते हुए जवाबी कार्रवाई में 8 खारिज को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक 5 और 6 अप्रैल की दरमियानी शब खारिज के एक ग्रुप ने शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल से पाकिस्तान में दाखिले की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके दौरान फायरिंग के शदीद तबादले और झड़प में 8 खारिज हलाक जबकि 4 जख्मी हो गए, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि अफगान हुकूमत से बारहा मुतालबा किया है कि वो बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाए और अपनी सरजमीन पर मौजूद पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जिला शिमाली वज़ीरिस्तान में बरवक्त कार्रवाई के दौरान फितनतुल खारिज के दहशतगर्दों की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने, 8 खारजियों को जहन्नुम वासिल करने और 4 को जख्मी हालत में गिरफ्तार करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरों और एहलकारों की बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितन खारिज के पाकिस्तान में शरंगेजी के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। उन्होंने कहा कि फ़ौज पाकिस्तान मुल्क की सरहदों से किसी भी किस्म की शरंगेजी की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान के बहादुर फ़ौज मुल्क की सरहदों की हमा वक्त हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। सदर ने कहा कि पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना है। दहशतगर्दी के अफरीद के मुकम्मल खात्मे तक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
اسلام آباد میں خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی اور گورننس کے چیلنجز سے متعلق سیمینار ہوا، جس سے خطاب کرتے ہوئے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ہمارے صوبے میں دہشت گردی جیسے مسائل ہیں جن سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی فورسز نے قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی نظام میں احتساب کا ہونا ضروری ہے، ترقیاتی فنڈز کا استعمال شفاف طریقے سے ہونا چاہیے۔ آذربائیجان کے وزیر اقتصادیات میکائل جبروف 8 اپریل کو پاکستان کا دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کے مطابق دورے کے موقع پر سرمایہ کاری کے منصوبوں پر مفاہمت کی یادداشتوں اور معاہدوں کو حتمی شکل دی جائے گی۔ میکائل جبروف وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات بھی کریں گے۔ آذربائیجان کے وزیر نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی سربراہی میں پاکستانی وفد کے ساتھ سرمایہ کاری پر تفصیلی بات چیت کریں گے۔ اقتصادی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل اسد مجید خان 8 سے 10 اپریل تک پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ اپنے دورے میں وہ صدر مملکت، وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، وفاقی وزراء سمیت پاکستانی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسد مجید تنظیم کے اصلاحاتی ایجنڈے اور فعالیت پر بات کریں گے۔ وہ لاہور میں اقتصادی تعاون تنظیم کے مستقل نمائندوں کی کونسل کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں کہ معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے اور مہنگائی میں نمایاں کمی آئی ہے۔ انجمن تاجران اور جڑاوالا پریس کلب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں 13 سال سے ایک ہی جماعت کی حکومت ہے۔ انہوں نے صوبے کو دہشت گردی کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ عوام کو ریلیف کی فراہمی مسلم لیگ نون کا ہمیشہ سے ہی ترہ امتیاز رہا ہے۔ حکومت نے بجلی کی قیمتوں میں نمایاں کمی کر کے عوام اور تاجروں کے دل جیت لیے ہیں۔ اور ملکی مفاد اور قومی وقار اولین ترجیح، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی کاوشوں سے ملک درست سمت میں گامزن ہو چکا ہے۔ معاشی استحکام کے براہ راست ثمرات عوام کو پہنچنا شروع ہو چکے ہیں۔ حکومت کی 1 سال کی بہترین کارکردگی پر ملک بھر میں یوم تشکر منایا گیا۔ جیسا جو مزدور طبقہ ہے، جو غریب عوام ہے، اس کے لیے یہ کافی ریلیف ہے، ان کا بہت شکر گزار ہیں ہم لوگ۔ جو غریب عوام ہے انہوں نے بہت اچھا یہ فیصلہ لیا ہے کہ غریب عوام کے لیے یہ بجلی کے یونٹ میں جو کمی کی ہے، اس کے لیے انہوں نے ان کا دل سے تھا گرائیوں کے شکر ادا کرتے ہیں۔ ایسے اور بھی ان کو کرنے چاہیے اقدامات۔ چلیں، اچھا پازیٹیو امیج ہے گورنمنٹ کی طرف سے، عام عوام کے لیے ریلیف اگر ان کو ملتا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی بجلی کے جو بل پہلے بڑھ رہے تھے ابھی وہ کم ہوں گے تو پھر ہمارا بجٹ بھی کم ہو جائے گا۔ اس وجہ سے اچھا ہی ہے کہ بجلی کم ہوئے گی تو پھر ہمارا بجٹ بھی اچھا ہو جائے گا۔ اچھی بات ہے اگر کوئی پلس پوائنٹ مل رہا ہے اگر عوام کو کسی بھی لحاظ سے، چاہے وہ بجلی کے لحاظ سے مل رہا ہے، چاہے پیٹرول کے لحاظ سے مل رہا ہے، تو یہ حکومت کا جو ہے نا یہ اچھا پوائنٹ ہے۔ اور اسی طرح کے جو ہے نا انیشیٹو آگے بھی نا فیوچر میں بھی لینے چاہیے، جس سے کوئی نہ کوئی بینیفٹ ملے وہاں کو۔ انہوں نے بہت اچھا جو ہے نا قدم لیا ہے، جو ہے نا عوام کے لیے جو ہے نا 7.5 روپے جو ہے نا یونٹ کم کی ہے، یہ ان کا بہت شکریہ ہے اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جو ہے اقدام کر رہے ہیں وہ ملک اور قوم کے لیے بہت اچھا ہو رہا ہے۔ جب شہباز شریف نے 7.5 روپے پر یونٹ کم کیا ہے تو انشاءاللہ انہوں نے اچھا ریلیف دیا ہے اور اچھا اثر پڑے گا اور بجلی کے بل بھی کم آئیں گے اور ہم پر بوجھ بھی کم ہوگا۔ صحت کے عالمی دن کے حوالے سے یہاں پر خبر شامل کریں گے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں صحت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد لوگوں میں شعور اجاگر کر کے صحت مند معاشرے کو فروغ دینا ہے۔ مزید تفصیل وردہ سلیم سے۔ یوں تو عالمی یوم صحت تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے، تاہم اس برس اس کا عنوان صحت مند آغاز امید افزا مستقبل ہے، جو خاص طور پر زچہ بچہ کی صحت کی طرف توجہ مرکوز کرتا ہے۔ زچگی میں ماؤں میں شدید انفیکشن، ہائی بلڈ پریشر، مشکل لیبر، قبل از وقت پیدائش اور بچے کی افزائش صحت مند نہ ہونا ان چند پیچیدگیوں میں ہے جو اموات کا باعث بن سکتی ہے۔ زچگی سے پہلے سارے کے سارے جو مراحل ہوتے ہیں گائناکالوجسٹ اور جو ان کی ڈاکٹر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ بالکل مرحلہ واز ان کو فالو اپ پہ ریگولر جانا چاہیے تاکہ بچے میں کوئی پرابلم ہو یا ماں کو کوئی پرابلم ہو زچگی کے دوران وہ ٹائم پہ پک کی جا سکے اور اس کو ایڈریس کیا جا سکے۔ عالمی ادارہ صحت کے علاقائی ڈائریکٹر ڈاکٹر حنان بلخی کے مطابق دنیا بھر میں ہر 7 سیکنڈ میں زچگی کے دوران ایک عورت یا نوزائیدہ بچہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ پروموشن آف بریسٹ فیڈنگ اینڈ فیملی اسپیسنگ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ مٹرنل مورٹیلٹی ریٹ، انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ کو ایڈریس کرنا انتہائی اہم ہے، بالخصوص ان ڈیولپنگ کنٹریز میں۔ معیاری اور مساوی صحت کی سہولیات، چھوٹے اور بیمار نوزائیدہ بچوں اور زچگی کی پیچیدگیوں والی خواتین کی دیکھ بھال پر توجہ مرکوز کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ معیاری بنیادی صحت کے ساتھ ساتھ تولیدی صحت کی دیکھ بھال کر کے مضبوط معاشرہ تشکیل پایا جا سکتا ہے۔ وردہ سلیم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत सेहत के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाने और मजबूत शराकतदारी के क़याम के लिए पुरज़्म है ताकि सेहत आमा की सहूलियात में बेहतरी लाई जा सके। सेहत के आलमी दिन के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने अपने पैगाम में कहा कि हम सब के लिए सेहत और फलाह बहबूद के लिए अपने कौमी अज़्म की तौसीक करते हैं। उन्होंने कहा कि माओं और बच्चों की सेहतमंद ख़ानदानों और एक पुरउम्मीद कौम की बुनियाद है जो सबके लिए रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत फराहम करती है। पाकिस्तान ने माँ और बच्चे की सेहत के हवाले से काबिल ज़िक्र पेशरफ्त की है, ताहम हमें अपने निज़ाम सेहत को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमें एहतियाती तदाबीर पर मबनी सेहत की देखभाल, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, दिमागी सेहत की बेहतरी और सेहत से मुताल्लिक अदम मसावात के खात्मे को अपनी तरजीहात में शामिल करना होगा। हर फर्द को मयारी सेहत की सहूलियात, तरबियत याफ्ता तिब्बी अमला, महफूज इलाज और ज़रूरी अद्वियात की बरवक्त फराहमी हमारा हदफ होना चाहिए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की जानिब गामज़न है, डॉक्टर्स और दवा को अवाम की दहलीज तक लाएंगे। आलमी यौम सेहत के मौके पर अपने पैगाम में वफाकी वज़ीर सेहत ने कहा कि पाकिस्तान में 54% आबादी को इस वक्त सेहत की तमाम तर सहूलियात मुयस्सर हैं। उन्होंने कहा कि इलाज की सहूलियात यकीनी बनाने के लिए टेली मेडिसिन की तरफ जा रहे हैं, नर्सेस की तादाद को बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं, जबकि 1 पेशेंट 1 ID का निज़ाम भी मुतारिफ करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोशिश है कि पाकिस्तान में हर माँ, हर नौज़ायदा, हर जगह अच्छी सेहत के साथ परवान चढ़ें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सेहत के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि आलमी यौम सेहत अच्छी सेहत को बरकरार रखने पर तवज्जो मरकूज़ करने की याद दहानी करवाता है। उन्होंने कहा कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीलियों से सेहत और मयार ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में सेहतमंद पंजाब विजन के तहत जामे हेल्थ रिफॉर्म्स का आगाज़ कर दिया गया है। फील्ड हस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स के जरिए लाखों मरीजों को महज चंद माह में घर की दहलीज पर इलाज की सहूलतें फ्राहम की गई हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब भर में पहली मरतबा 1250 मराकज़ सेहत को जदीद तरीन क्लिनिक्स में तब्दील किया जा रहा है और बड़े हस्पतालों में इलाज, मुआलजे, तिब्बी सहूलियात और अद्वियात की फराहमी के लिए भरपूर और मौसर इक़दाम किए जा रहे हैं। अपने एक पैगाम में उन्होंने कहा कि पसमानदा इलाकों में इमरजेंसी की सूरत में मरीज़ को बड़े शहर ले जाने के लिए एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू कर दी गई है और आवाम को उनके घर की दहलीज पर अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। और अब बैनुल-अक़वामी मंज़रनामे में सबसे पहले आपको अपडेट करते चलें गाज़ा की सूरत हाल से। इजरायली फोर्सेस की फ़लस्तीनियों के खिलाफ जारियत बदस्तूर जारी है। गाज़ा के मुख्तलिफ इलाकों पर इजरायली फोर्सेस ने लगातार बमबारी का सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिसमें 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। गजा शहर में इसराइली ड्रोन हमले में बाप और बेटी शहीद हुए। इसराइल ने जनूबी गजा में नया सिक्योरिटी कॉरिडोर कायम कर लिया है। 18 मार्च को एक तरफा तौर पर जंगबंदी मुआहिदा तोड़ने के बाद इसराइली फोर्सेस के हमलों में 1315 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 3200 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। उधर मगरबी किनारे में भी काबिज़ फ़ौज की छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। नाबलूस में घर घर तलाशी के दौरान काबिज़ फ़ौज ने मुतादिद फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। यमन के शहर सादा पर अमरीकी फोर्सेस की जानिब से बमबारी की गई, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक हो गए। हौसी ग्रुप ने अमरीकी हमले की तस्दीक की है। और यूरोपीय यूनियन ने अमरीकी दरामदात पर $28 अरब टैरिफ लगाने का फैसला कर लिया है। सरबराह यूरोपीय कमीशन के मुताबिक टैरिफ लगाने की मंजूरी इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद दी जाएगी। यूरोपीय यूनियन सरबराह का कहना है कि हम टैरिफ के मसले पर अपने दिफा के लिए तैयार हैं और अमरीका के साथ मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है। सरबराह यूरोपीय कमीशन ने मजीद कहा कि 24 अप्रैल को लंदन में बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होगी। दूसरी जानिब अमरीकी टैरिफ के बाद मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ राब्ते किए। व्हाइट हाउस के मुताबिक 50 से ज़ायद ममालिक ने टैरिफ कम कराने के लिए सदर ट्रंप से रब्ता किया। कई ममालिक का रब्ता करने का मकसद सख्त टैरिफ कम कराना है। रब्ता करने वाले ममालिक समझते हैं कि वो सख्त टैरिफ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि स्टॉक मार्केट में जानबूझकर उतार चढ़ाव पैदा नहीं किया, किसी चीज़ को दुरुस्त करने के लिए इक़दाम करने पड़ते हैं। इसी बुलेटिन में शामिल करेंगे हम खबरें और भी। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मेरे बुजुर्गों, भाइयों, बहनों और नौजवानों, अल्लाह ताला के फजल करम से
हमने बिजली की कीमत में कमी का वादा पूरा कर दिया है। घरेलू सार्फिन के लिए 7 रुपये 41 पैसे फी यूनिट बिजली सस्ती कर दी गई है और सनती सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 7 रुपये 69 पैसे फी यूनिट कमी कर दी गई है। हमारा प्यारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अब तरक्की की उड़ान भर चुका है और इंशाअल्लाह हम इज्तिमाई काविशों से तेजी से आगे बढ़ते जाएंगे। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वेलकम बैक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से 100 से ज़ायद ममालिक अमरीका को बरामदात पर आयद किए गए टैरिफ के नतीजे में अमरीकी और यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी के बाद सऊदी स्टॉक मार्केट और दीगर खलीजी मंडियां भी मंदी का शिकार हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इतवार के रोज सऊदी स्टॉक एक्सचेंज में 6.78% गिरावट देखी गई। सऊदी स्टॉक इंडेक्स 800 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी पर बंद हुआ, जो कि गुज़श्ता 5 वर्षों के दौरान एक दिन में आने वाली रिकॉर्ड कमी है। कुवैत के इंडेक्स 5.7% नीचे आया। कतर के स्टॉक मार्केट 4.2% कमी के साथ बंद हुई, जबकि ओमान की मस्कत स्टॉक मार्केट में 2.6% की गिरावट देखी गई। अबू धाबी और दुबई में हफ्ते इतवार की तातीलात के बायस कारोबार बंद रहा। और चीन ने टैरिफ के मामले पर अमेरिका को बातचीत की पेशकश कर दी है। तर्जमान चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि वक्त आ गया है कि अमेरिका अपने गलत इक़दाम रोक दे, अमेरिका बराबरी के बुनियाद पर इख्तलाफात दूर करे। दुनिया ने अमरीकी सदर के महसूलात मुस्तरद कर दिए हैं। टैरिफ से चीन को होने वाला नुकसान अमरीका से बहुत ज़्यादा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रद्दअमल में कहा कि चीन और दूसरे बहुत से ममालिक ने हमें नुकसान पहुंचाया, इस नुकसान के साथ गुजारा नहीं किया जा सकता। अमरीका में $5 खरब की सरमायाकारी आ चुकी है। ये मौशी इनकलाब है और हम जीतेंगे। हतमी नतीजा तारीखी होगा। हम एक बार फिर अमरीका को अजीम बनाएंगे। और अब खबर है भारत से। भारतीय लोकसभा में मुतनाज़ वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद पूरा भारत एहतजाज की लपेट में है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिल के खिलाफ कौमी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद फजलुर रहमान मुजद्ददी ने कहा है कि उनकी क़यादत इस सिलसिले में किसी भी कुर्बानी से गुरेज नहीं करेगी, इंसाफ पसंद कुव्वतों के साथ ज़ालिमाना तरामीम के खिलाफ मजबूत तहरीक चलाएगी। मौलाना मोहम्मद फजलुर रहमान मुजद्ददी ने कहा कि मुहिम का आगाज़ दिल्ली के टाक्टोरा स्टेडियम में अजीम अवामी इज्तिमा से होगा, जो ईद उल अज़हा तक जारी रहेगी। बोर्ड कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में तरामीम को चैलेंज करेगा और पुरअमन एहतजाज करेगा। उन्होंने कहा कि हर रियासती दारुल हुकूमत में मुस्लिम रहनुमा अलामती गिरफ्तारी देंगे और ज़िली सतह पर एहतजाज मुनज़्ज़म किए जाएंगे। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, लखनऊ और दीगर शहरों में बड़े पैमाने पर एहतजाजी प्रोग्राम होंगे। और गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। वापस जाने वाले अफगानियों ने लंडी कोतल ट्रांसिट कैंप में दस्तयाब सहूलियात को तसल्ली बख्श करार दिया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे लंडी कोतल ट्रांसिट कैंप में मौजूद अपने नुमाइंदे उमर शनवारी से। जी, पाकिस्तान में गैर रजिस्टर्ड मुकीम अफगानियों की बेदखली का सिलसिला जारी है। इस वक्त में लंडी कोतल जो ट्रांसिट कैंप है इसके सामने मौजूद हूँ। आप देख रहे हैं कि दर्जनों खानदान यहाँ पर आए हुए, इनकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इनको यहाँ पर खाना भी मुफ्त दिया जा रहा है, तिब्बी सहूलियात भी मुफ्त दी जा रही है। और साथ साथ जो यहाँ से तकरीबन तुरखाम बॉर्डर 10 किलोमीटर दूर है, जो सफरी यहाँ पर जो सफ़र करते हैं, जो सफरी है वो भी इनके लिए फ्री किया गया है। सफ़र के भी इनसे कोई पैसे नहीं लिए जा रहे। मेरे साथ एक अफगानी मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि इन सहूलियात को किस नज़र से देखते हैं। नहीं, यहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छा खिदमत कर रहे हैं। हमारा जो कुछ भी हो रहा है अच्छा तरीके से हो रहा है, हम खुश हैं, कोई मसला नहीं है सर। यहाँ पे जो है ना अर्च है, सही है। जी बिल्कुल, आपने अफगानी की बात इस इनका कहना था कि यहाँ पर जो ट्रांजिट कैंप किया है इसमें जो इंतजाम है वो तस्लीम बख्श है, इनसे हम खुश हैं और हम खुशी अपने वतन जा रहे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज हुकाम ने भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे से कबल इलाके में पाबंदियां मजीद सख्त कर दी हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक वादी कश्मीर में सड़कों पर मुतादिद इजाफी चौकियां कायम की गई हैं, जिन पर गाड़ियों और मुसाफिरों की चेकिंग को मजीद सख्त कर दिया गया है। वादी कश्मीर के देही और शहरी इलाकों में दाखिली और खारजी रस्तों पर गश्त और फोर्सेस की तैनाती को बढ़ा दिया गया है। जिला कुपवाड़ा के इलाके करालापुरा में एक नाके पर 2 कश्मीरी नौजवान इम्तियाज़ अहमद नजार और मुनीर अहमद शेख को गिरफ्तार किया गया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान
तर्जुमान ने श्रीनगर में जारी एक बयान में अमित शाह के मकबूजा जम्मू कश्मीर के दौरे की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि भारतीय वज़ीर दाखिला काबिज फोर्सेस को पुरम जद्दोजहद आज़ादी को वहशियाना ताकत से कुचलने की हिदायत कर रहे हैं। और भारतीय वज़ीर दाखिला के मकबूजा कश्मीर दौरे के खिलाफ मुजफ्फराबाद में पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी मुजाहरा मुनक्किद किया गया। इस मुजाहरे में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने बैनर्स और कतबे उठा रखे थे जिन पर भारतीय वज़ीर दाखिला के कश्मीर के दौरे के खिलाफ मज़म्मती जुमले दर्ज थे। इस मौके पर खिताब के दौरान मुकर्ररीन ने कहा कि कश्मीरी अवाम भारतीय वज़ीर दाखिला के दौरे कश्मीर को मुस्तरद करते हैं जो 5 अगस्त 2019 के दहशतगर्दाना इक़दामात का जिम्मेदार है। कश्मीरी अवाम ऐसे शख्स को काबिल नफरत समझते हैं। मुकर्ररीन ने कहा कि भारतीय हुक्मरान जान लें कि कश्मीरी अवाम भारत की जबरी फौजी हाकमियत को कभी कबूल नहीं करेंगे। कुछ बात करेंगे यहाँ पर सानह 11 की। सियाचिन का महाज दुनिया का बुलंद तरीन महासे जंग है जहाँ दुश्मन के अलावा शदीद तरीन सर्द मौसम भी पाक फौज के ऑफिसर और जवानों के लिए कड़ी आजमाइश है। 7 अप्रैल 2012 को सियाचिन पर इंतहाई दिलसोज हादसे में वतन अजीज़ के दिफा पर मामूर बड़ी तादाद में पाक फौज के जवान बर्फानी तौदे के जद में आ गए। बटालियन हेडक्वार्टर में मौजूद 129 फौजी जवानों ने वतन की हुर्मत की खातिर जाम शहादत नोश किया। इस हादसे के असरात इतने तल्ख थे कि गैर मुल्की रेस्क्यू टीमों ने भी इस मिशन को नामुमकिन करार दे दिया था। जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार पाक आर्मी की इंजीनियर कोर ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को मुकम्मल करने का बीड़ा उठाया और अनथक मेहनत और जवामर्दी से ये मुश्किल तरीन ऑपरेशन पाए तकमील तक पहुँचा। सानह 11 के शोहदा की कुर्बानियों की याद में सियाचिन के महाज पर यादगार शोहदा भी तामीर की गई है। आज पूरी कौम शोहदा 11 सेक्टर को खराज अकीदत पेश करती है। और कसूर का अजायब घर अपने अंदर कई तहजीबों और अक़वाम की तारीख को समोए हुए है। अजायब घर में तारीख के मुख्तलिफ अदवार और सकाफत की झलकियाँ बाखूबी देखी जा सकती हैं। इसी हवाले से आपको दिखाते हैं कसूर से चौधरी वसीम खुशी की ये रिपोर्ट। कसूर समेत दुनिया की तहजीब व तमद्दन को समेटे अजायब घर में महफूज नवाजरात समेत दीगर अशिया पर नजर पड़े तो इंसान वर्ताए हैरत में मुब्तला हो जाता है और फिर इस तहजीब से अपनाइयत भी बढ़ जाती है। यहाँ ये हजारों साल पुरानी चीजें देखी हैं और बड़ा मजा आया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। कसूर के अजायब घर में कबल मसीह और मुगलिया दौर की अशिया, रहन सहन, बनाओ संगार, गीत संगीत और तहजीब व तमद्दन की ऐसी अशिया के जिन्हें देखकर अकवाम की पहचान उजागर होती है। यह पुराने जमाने की चीजें देखने आया हूँ और इधर मैंने हैरान कुन चीजें देखी हैं जिसमें मुझे सबसे अच्छी चीज लोहे का लिबास अच्छा लगा। कसूर के अजायब घर में रखे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर मुख्तलिफ अदवारात के सिक्के और करेंसी नोट न सिर्फ तारीख के पन्नों पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं बल्कि माजी के झरोंकों को आंखों के सामने ले आते हैं। हमें ये सब कुछ देखकर बहुत खुशी हुई है कि इतने 100 साल पुरानी चीजों को भी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने रखा हुआ है। अजायब घर में महफूज 5000 साल पुराने वादी सिंध और हड़प्पा दौर के बर्तन, हथियार और दीगर इस्तेमाल के नायाब अशिया, चमड़ा साजी की कदीम सनत और आखिरी मुगलिया दौर के हाथों से बने हुए खेस और चादरें कसूर की तारीखी, इल्मी और सकाफती होने की दलील हैं। जिंदा कौमें अपने माजी से सबक सीखते हुए आगे तरक्की की तरफ गामजन रहती हैं और अपनी तहजीब और सकाफत से रूशनास होने के लिए म्यूजियम अहम किरदार अदा करते हैं। चौधरी वसीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कसूर। और अब कसूर से आपको लिए चलेंगे मिंचनाबाद की जानिब। पंजाब के दीगर शहरों की तरह मिंचनाबाद में भी साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से जारी है। खालिद सईद की रिपोर्ट। पंजाब के दीगर शहरों की तरह मिंचनाबाद में भी साफ सुथरा प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया गया है। इस प्रोग्राम की इफ्तारी तकरीब में डिप्टी कमिश्नर, MPA और MNA के अलावा शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस प्रोजेक्ट के तहत तहसील भर की 25 यूनियन काउंसिल्स में 406 के करीब सैनिटरी वर्कर्स भर्ती किए गए हैं जो कि 116 रिक्शों और ट्रालियों की मदद से कचरा उठाने का अमल मुकम्मल करेंगे। इसके साथ शहर के 81 मकामात पर वेस्ट कंटेनर रखे गए हैं जिसका मकसद शहर को गंदगी, आलूदगी और कचरे से साफ़ करना है। हमने मेन फोकस किया है पहले शहरों को साफ़ करें, इसलिए हम तमाम ये देख सकते हैं कि अड्डे के राउंड इंतहाई गंद था जिसको हम ऑलमोस्ट क्लियर कर रहे हैं। हम मोहल्लों में से, खाली प्लॉट्स में से बिल्कुल सफाई कर रहे हैं क्योंकि हम इसको 0% पे लेके आना चाहते हैं।
हम CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ के शुक्रगुजार हैं कि हमारी तहसील मिंचनाबाद में रिकॉर्ड सफाई का काम जारी है। आज तक हमारे इलाके में इस तरह की सफाई नहीं हुई। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये सफाई के हवाले से। हर गली में लोग जा रहे हैं सफाई के सिलसिले में और डोर टू डोर वेस्ट की कलेक्शन कर रहे हैं। प्रोजेक्ट की निगरानी के लिए बाकायदा तौर पर शिकायत सेल कायम किया गया है, जहां पर मर्द ख़वातीन पर मुश्तमिल अमला सफाई के अमल की निगरानी कर रहा है। इस इनकलाबी प्रोग्राम से न सिर्फ शहर की अमूमी फ़िज़ा बेहतर होगी, बल्कि इसके साथ साथ इंसानी सेहत पर भी खुशगवार असरात मुरतब होंगे। खालिद सईद, PTV न्यूज़, मिंचन आबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रुकने पंजाब असम्बली चौधरी अरशद जावेद वड़ाइच के इंतकाल पर गहरे अफसोस और रंज का इजहार किया है। उन्होंने मरहूम की बुलंदी दर्जात की दुआ की। वज़ीर आज़म ने मरहूम अरशद जावेद वड़ाइच की बेटी साबिक चेयरपर्सन जिला काउंसिल सियालकोट मोहतरमा हिना अरशद से टेलीफोनिक रब्ता किया और इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि मरहूम अरशद जावेद की सियासी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने भी चौधरी अरशद जावेद वड़ाइच के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। उन्होंने मरहूम की सियासी खिदमत को सराहा। अफसोसनाक हादसे से मुताल्लिक आपको खबर देंगे कि जड़ावाला में ट्रैफिक के हादसे में 11 अफराद जाम बहक और 6 अफराद जख्मी हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज़ रफ्तार बस लोडर रिक्शे से टकरा गई। बस लाहौर से फैसलाबाद जा रही थी। जख्मियों को सिविल अस्पताल फैसलाबाद मुंतकिल किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जड़ावाला ट्रैफिक हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने सोगवार ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत भी की है और जख्मियों के इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत की है। और मौसम की सूरत हाल कैसे रहेगी ये आपको बताएंगे कासिम अली। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। आज सुबह सिंध, जनूबी और वस्ती पंजाब में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहा। गुज़श्ता रोज़ रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत शहीद बेनज़ीराबाद, दादू 47, मोजदाड़ो, सिब्बी, सकरन, टंडोजाम 46, मिट्ठी, हैदराबाद, सक्खर, छोर, रोहड़ी और लाड़काना में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये इस